Welcome to third part of mensuration chapter. We have done a lot of shapes like square, rectangle, parallelogram, rhombus, trapezium, equilateral triangle, right angle triangle, etc. Today we are going to start from topic H, circle. As usual, first I'll give you an overview about circle. A circle has one radius, and if you double the radius you get a diameter. So the first formula, which is very simple, diameter is equal to double of radius, or radius is equal to half of diameter. Then circumference. Circumference मतलब पेरीमीटर. सर्कल के पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ द सर्कल, लंबाई. एक पॉइंट ए से शुरू करो और चलते 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 पूरे सर्कल का चक्कर काट के वापस ए पे आ जाओ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट्स द सर्कमफ्रेंस और द पेरीमीटर, एंड द फॉर्मूला इज 2 pi r. एंड सेकेंड इज एरिया, which is pi r square. मतलब ये पूरा पोर्शन which the circle is occupying area. Remember, circumference and perimeter always has unit centimeter or meter, and area's unit is centimeter square or meter square. That's all. Let's start looking at the sums. Question number 1, find area and perimeter. Wait, semicircle कहाँ से आ गया? Question number 1, find area and perimeter of circle with radius 7. So radius is equal to 7. Circumference मतलब perimeter मतलब 2 pi r is 2 pi r. 44 centimeter is the circumference, and area pi r square. Pi r square 22 into 7, 154 cm square is the area. Very simple. Question number 2, find area and perimeter of circle with radius 2.5. Circumference is equal to perimeter is equal to 2 pi r is equal to 2 pi r. Now understand one thing, ये 7 किसी के साथ भी कट नहीं हो रहा है, तो instead of using 22 by 7 you can use 3.14. It will be easier. 3.14 is 314 upon 100. 2.5 is 25 upon 10. कैंसल हो सकता है तो करो और उसके बाद कैलकुलेट करके आंसर निकालना. 25 4 जा 2 2 जा 2 157 जा, and 157 upon 10, 15.7 centimeter is the perimeter. तो अगर 7 कट नहीं हो रहा है तो replace the value of pi. Instead of using 22 by 7 use 3.14. सम थोड़ा easy हो जाएगा. And area is equal to pi r square. Pi r square 314 upon 100, 25 upon 10 upon 10. 25 4 जा 100, 2 and 157.
you are left with 157, 25, 2, 100. Again 25 4 157 upon 8. 8 1 8, carry 7, 77. 8 9 72, carry 5, 50. 8 6 48, carry 2, 20. 8 2 16, 19.625. Let's check on a calculator whether our answer is right or wrong. Pi r square, 3.14 into 2.5 into 2.5, 19.625 is the answer. एरिया मिल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर. Did you observe the difference when radius is 7? पाई 22/7 में कितना इजीली आंसर आ जाता है, क्योंकि 7 कट होते ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. बट यहाँ पे 2.5 रेडियस था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. थर्ड सम, फाइंड एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल विद डायामीटर 42. डायामीटर 42 तो रेडियस 21, उसका आधा. सरकमफ्रेंस पेरीमीटर 2 पाई आर, 2 पाई आर, 7 gets cancelled, 132 centimeter answer. And area pi r square, pi r square, 3 into 22 66 into 21 660 660 66 1386 centimeter square. Fourth sum, find area and perimeter if diameter is 10. डायमीटर नहीं भाई, कहाँ पढ़ रहे हो. फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर इफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 आर 10. Circumference is equal to perimeter is equal to 2 pi r is equal to 2 पाई. 3.14 को मैं 314 अपॉन 100 डायरेक्टली लिख सकता हूँ एंड r is 10. 0 0 कट, 62.8. It's very easy. And area pi r square, pi r square, area is 314 centimeter square. तो ये सब तो इजी था, बट फिफ्थ और सिक्स्थ सम स्पेशल है. फिफ्थ एंड सिक्स्थ सम पे ध्यान दो. फाइंड पेरीमीटर इफ एरिया इज 616. सर्कल का पेरीमीटर क्वेश्चन मार्क, सर्कल का एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका फॉर्मूला यूज करो. एरिया इज 616 मीन्स पाई आर स्क्वायर is 616, means 22/7 r square is 616, means r square is equal to 616 into 7 upon 22. Cancel as much as you can. 11 2s are 11, 56 2 28s. तो r square is equal to 28 into 7. Don't multiply, factorize. 28 मतलब 2 2s are 4 7s are 28 और ये 7. तो r square is 2 into 2 and 7 into 7. याद है स्क्वायर रूट फाइंड करते थे बाय अंडरलाइनिंग. r is equal to 2 into 7, रेडियस 14. तो एरिया में से रेडियस निकलता है. दिस इज हाउ. और अब पेरीमीटर पूछा है.
perimeter is equal to 2 pi r, where you will put the value of r. 2 pi r, 88 centimeter is the final answer for perimeter. तो एरिया दिया था, पेरीमीटर फाइंड करो. अब पेरीमीटर दिया है, एरिया फाइंड करो. पेरीमीटर इज इक्वल टू 88, एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो जो भी इंफॉर्मेशन दी है पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला यूज करो. 2 पाई आर 88, 2 पाई आर 88, r is equal to 88 into 7 upon 2 into 22. 222 मतलब 44, 44 2 जा r is equal to 2 into 7 14. और वो रेडियस को एरिया के फॉर्मूला में यूज करो. पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर (616 centimeter square is the area. So that was circle sums. Similar sums will come in homework also. टॉपिक आए सेमी सर्कल. अब सेमी सर्कल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं. सर्कल वर्सेस सेमी सर्कल. सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला इज 2 पाई आर. अब ध्यान से देखो, इफ आई ब्रेक द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, द टॉप एंड द बॉटम, तो टॉप का लंबाई पाई आर होगा और बॉटम का भी पाई आर, क्योंकि पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर. तो ये पाई आर हो गया इसकी लंबाई. आधा सर्कल है ये, 2 पाई आर का आधा, 2 2 कट पाई आर. और दूसरी चीज, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसके दोनों तरफ रेडियस है. Therefore, perimeter of a semicircle is pi r plus 2r, rr. तो पाई आर में इतना कवर होता है और 2r में ये हो गया पूरा बाउंड्री, पाई आर प्लस 2r. और somebody might take r common and say pi plus 2, or somebody might say pi r plus d. d मतलब डायमीटर, डबल ऑफ रेडियस इज डायमीटर. तो ये सारे वर्जन सेम है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेंगे तो कंफ्यूज होना मत. बट मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड वर्जन इज आर्क प्लस 2 रेडियस. दैट्स द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब उसका आधा इज हाफ पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बाय 2. लॉजिकल है, पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो आधा सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2. Sum number 1. Find area and perimeter of semicircle of radius 7. Radius 7. Perimeter is equal to pi r plus 2r. Pi r plus 2r. 22 plus 14. 36 centimeter. Area of semicircle pi r square by 2, pi r
square by 2. 77 centimeter square. Second question. Find area and perimeter of semicircle of radius 12. Perimeter pi r plus 2r. Pi r plus 2r. Now see carefully, 7 कट नहीं हो रहा है, तो चालू सम में ही 22/7 को मैं 3.14 ले सकता हूँ, क्योंकि 22/7 का टेक्निकल मतलब है 22 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इंडीड 2.14, अरे 3.14 प्लस 2 12 जा 24. 3.14 को 12 से मल्टीप्लाई करो. To save time, I am using the calculator. You are not supposed to use calculator. 37.68 plus 24. 61.68 centimeter is the perimeter of the circle with radius 12. और अब area of semicircle is pi r square by 2. Pi r square by 2. 3.14 into 72. और ये मल्टीप्लिकेशन तुम्हें खुद करना ही पड़ेगा रफ में. फिलहाल 3.14 into 72. 226.08 centimeter square is the area of the semicircle. And third and fourth में diameter दिया है. You have to pause the video and find yourself, after which I will reveal the answers. Diameter 35, रेडियस 35/2. दूसरे में डायमीटर 10, रेडियस 5. फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर योरसेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो राइट नाउ. पाई आर प्लस 2r मतलब पाई आर प्लस डी. पाई आर प्लस डी. 55 प्लस 35 90. और दूसरे वाले का पेरीमीटर पाई आर प्लस 2r, बट 2r इज d एंड d इज 10. पाई 3.14 लूंगा. रेडियस 5 है, r की जगह पे 5. पाई आर प्लस 2r. 3.14 into 5. 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15.70 प्लस 10 25.7. ये हो गया दोनों का पेरीमीटर. दोनों का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2. पाई आर स्क्वायर बाय 2 मतलब हाफ. 7 5 जा 2 11 जा 11 5 जा 55 इंटू 35 अपॉन 4. ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद करना पड़ेगा. 55 into 35 is 1925. Learn doing this division by heart. 8th standard is going to get over, and if you do not know how to do this directly,
then I'm sorry to say, but you are not doing the correct maths. 4 fours are 16, carry 3 32, 4 eights are 32, 4 ones are 4, carry 1, 4 twos are 8, 20, 481.25. Let's check whether I'm right or wrong. 1925 divided by 4, 481.25. ये बाय हार्ट करना सीखो. So, area is 481.25. But what is the area if radius is 5? Area is pi r square by 2. 2 ones are 2, 0.57 into 5 fives are 25, means 157 upon 100 into 25, मतलब 157 upon 4. 4 threes are 12, carry 3, 37, 4 nines are 36, carry 1, 39.25. Let's check. 3.14 into 5 divide by 2, 39.25. ये कैलकुलेशन सीख जाओ. एक भी सम ऐसा रॉन्ग पड़ा तो 50-50 बार मल्टीप्लाई डिवाइड के टेबल्स लिखवाऊंगा. क्लास खोल दे दो बस. Anyways, this is where we start the exercise now. The first exercise, first sum, you have to write down these sums. Textual homework में textual exercise क्या है 11.1 या 12.1 and write down every sum with figure. A square and a rectangular field of measurements given in the figure have same perimeter. ये है square, ये है rectangle. दोनों का पेरीमीटर सेम है. स्क्वायर रेक्टेंगुलर फील्ड हैव सेम पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4a. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2l प्लस b. 4a but a is 60. 2l प्लस b. अब ब्रेथ नहीं है, वो यहां से मिलेगी b. 240 is equal to 160 plus 2b. b is equal to 80 by 2, 40. तो breadth मिल गई. And once you get the breadth, question is which field has larger area? Area of square is side square formula. Side square मतलब 60 square मतलब 3600 meter square area. And area of rectangle is length into breadth. Length 80, breadth 40, 3200 meter square. Square has larger area. उतना एक सेंटेंस लास्ट में लिख देने का. A square has larger area, rectangle has smaller area. So right from the first sum, nothing is simple in this chapter. तो मैंने 3 लेक्चर प्रैक्टिस करवाई बेसिक सम्स की, ताकि यहां पे प्रॉब्लम ना पड़े. Second sum, Mr. Kaushik has a square plot with the measurement shown in the figure. Square plot कहाँ है? ये बाहर का. और स्क्वायर का लेंथ कितना है? 25 by 25. ये रहा. She wants to construct a house in the middle of the plot. प्लॉट के बीचों बीच उसको एक घर बनाना है.
जिसकी लेंथ 20, ब्रेथ 15 होनी चाहिए. अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. हाउस के आसपास गार्डन है. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. गार्डन बनाने का खर्चा पूछा है, और गार्डन बनाने का खर्चा कॉस्ट फाइंड करने के लिए पहले एरिया फाइंड करता है. कॉस्ट डिपेंड्स ऑन एरिया. बिग एरिया, बिग कॉस्ट. स्मॉल एरिया, small cost. Therefore, our first target is to find the area of garden. और एरिया ऑफ गार्डन कैसे मिलेगा? गार्डन तो कोई फिक्स शेप नहीं है. गार्डन ऐसे ऐसे है, पट्टी पट्टी में, साइड में. हाउ टू फाइंड दिस ग्रे एरिया? द स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल. एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस. प्लॉट में से हाउस का एरिया माइनस कर दो तो बचा हुआ एरिया अपने आप गार्डन हो जाएगा. So you have to write down area of plot minus area of garden. अरे minus area of house. Area of plot, it's a square plot. Square का area side square मतलब 25 square. Area of house, it's a rectangle. Length into breadth 20 into 15 मतलब 625 minus 300. 325 meter square is the area of the garden. अब एरिया ऑफ गार्डन मिलने के बाद कॉस्ट ऑफ गार्डन, विच इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इज 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया डेवलप करने का 55 रुपया. तो 325 मीटर स्क्वायर डेवलप करने का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई में जो दो नंबर आमने सामने है और यहां क्वेश्चन मार्क और 1 है, तो दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो एंड देन डिवाइडेड विद द रिमेनिंग सिंगल नंबर 1, you get your answer. 55 into 325, 17,875 rupees is the cost of developing the garden around the house. ऐसा है ये सम. एरिया ऑफ गार्डन इज बिग स्क्वायर माइनस स्मॉल रेक्टेंगल, और वो एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट पता चलता है. Third sum. The shape of garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. Find the area and perimeter. ये गार्डन है जिसका सेंट्रल पोर्शन एक रेक्टेंगल है. Let's try to find out the length of the rectangle. Do we have this red line? No. But what we have is this blue line. यहां से यहां तक टोटल लंबाई 20 मीटर है. बट सेमी सर्कल ये 7 है, और ये 7 का मतलब ये 7 है. तो रेक्टेंगल का ब्रेथ 7 मिल गया. बट द ब्लैक लाइन is not just the breadth of rectangle, it is also diameter of the circle. तो 7 का आधा 7/2 7/2 is the radius. तो ये भी 7/2. So this is 7/2.
दिस पोर्शन इज 7/2, तो फुल ब्लू लाइन 20 में से दो 7/2 माइनस कर दो तो ये रेड लाइन मिलेगी. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is full length minus 7/2 from the two ends. -7 minus 14/2. 20 minus 7, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऐसे मिलता है 13. तो अब I have what I require. I have 3 parts of the garden. Rectangle जिसका लेंथ 13 है और ब्रेथ 7. एक तरफ एक सेमी सर्कल जिसका रेडियस 7/2 है और दूसरा सेमी सर्कल जिसका रेडियस 7/2 है. जॉब नंबर 1, रेडियस 7/2. अब पहले गार्डन का पेरीमीटर फाइंड करते हैं. पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री. तो गार्डन की बाउंड्री में ये और ये 4 चीजें आती. ये बाउंड्री नहीं है अंदर की. यू सी द ओरिजिनल गार्डन, द बाउंड्री इज दिस रेड लाइन, दिस सेमी सर्कल, अगेन रेड लाइन एंड अगेन सेमी सर्कल. हाउ टू फाइंड आउट दिस रेड colored length? Perimeter of garden is L plus pi r plus L plus pi r. मैंने तुमको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि फुल सर्कल का पेरीमीटर 2πr, तो आधा सर्कल πr. सो लेंथ प्लस πr प्लस लेंथ प्लस πr मिल गया पेरीमीटर. लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ, πr प्लस πr 2πr. 2 into 13 plus 2 pi, radius 7/2. 26 plus 22, 48 meter is the perimeter of the garden. Second question is find the area. एरिया में एरिया ऑफ सेमीसर्कल, एरिया ऑफ सेमीसर्कल, एरिया ऑफ rectangle. So area of garden is made up of 3 areas: semicircle plus rectangle plus semicircle. Pi r square by 2, length into breadth, pi r square by 2. बट समझो 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल हो जाता है, तो आई कैन ऑल्सो डू सर्कल प्लस रेक्टेंगल, पाई आर स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ. पाई आर स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ. सेवेंटी 7/2 प्लस 91. 77/2 38.5 plus 91 129.5 meter square is the area of garden. Imagine ये सिर्फ
तीसरा सम है. इफ आई वुड हैव स्टार्टेड द चैप्टर फ्रॉम हियर, तुमको कुछ समझ में नहीं आता. दैट्स व्हाई आई हैड स्पेंड सम टाइम इन making you understand what is area and perimeter. So once again a quick recap. Garden is in this shape. और सबसे इंपॉर्टेंट था फिगर समझना. तो फिगर एक बार फिर समझा देता हूं. दिस विड्थ इज 7 और ये 7 होने का मतलब ये 7 है और ये 7 है. ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. और अगर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 7 है मतलब डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 7 है. एंड इफ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 7, तो रेडियस उसका हाफ 7/2. बट आई कैन ऑल्सो टेक 3.5 if I want. दोनों में सेम आएगा आंसर. नाउ फुल लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20. यहां से यहां तक 20. बट उसमें से ये 3.5 और ये 3.5 निकाल दो तो 20 minus 3.5 minus 3.5 gives you 13. Therefore the length of the rectangle comes out to be 13. और उसके बाद तुम्हें पेरीमीटर और एरिया का कैलकुलेशंस करना है. So if you have written it in your notebook, only then you will be able to solve the homework sum. Remember that. Fourth question. A flooring tile has a shape of parallelogram whose base is 24 and height is 10. Tiles है parallelogram shape की. Parallelogram का base 24 और height मतलब altitude, यहां से 90 डिग्री, height is 10. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meters square? एक घर का फ्लोर है उसमें ये पैरेललोग्राम टाइल्स लगानी है. क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड. समझ में आया? तो टाइल इज 24 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर और घर का एरिया 1080 मीटर स्क्वायर. 1080 मीटर स्क्वायर. Very very important question. But before going forward, go to the table which I gave you to write down 5 times. 5 बार जो फॉर्मूला टेबल लिखा था उसके आसपास कुछ चीजें ऐड करो और वो है ऐसे. राइट कन्वर्जन. वन मीटर is equal to 100 centimeter. 1 meter square is 10,000 centimeter square and 1 meter cube is 1 million centimeter cube. यह है लेंथ, यह है एरिया, यह है वॉल्यूम और ये 8, 9, 10 तीनों में काम आएगा. ये जनरल नॉलेज है. 1 मीटर लंबाई मतलब 100 सेंटीमीटर लंबाई. 1 मीटर स्क्वायर एरिया मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. आई एम जस्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर. नाउ 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब
लंबा एरो, लंबा एरो, लंबा एरो, 100 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर, 1 मिलियन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर स्क्वायर को सीएम स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए 4 जीरोज, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करने के लिए 6 जीरोज मल्टीप्लाई करते हैं। ये लिखो। और अगर उल्टा कन्वर्जन करना पड़े, 1 cm स्क्वायर एंड 1 cm क्यूब, तो what will you do? You will divide it with 100. एरिया होगा तो डिवाइड विद 10,000 एंड डिवाइड विद 1 मिलियन इफ इट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो 9 स्टैंडर्ड में आएगा, बट ये तीन ही होते हैं तो एक साथ सीख लो तो बेटर है। सो मीटर टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर टू मीटर और मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब डिवाइड। So copy this much, all 9 things in your formula list and make sure you remember this forever. तो coming back to the question, 24 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की टाइल्स है और 1080 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करना है, तो कितनी टाइल्स चाहिए? नंबर ऑफ टाइल्स is equal to large area upon small area। ये फॉर्मूला है विच यू हैव टू ऐड इन द लिस्ट। वापस एक बार लिस्ट खोलो, टेबल, और उसके आसपास ये ऐड कर दो। नंबर ऑफ टाइल्स इज लार्ज एरिया अपॉन स्मॉल एरिया। लार्ज एरिया किसका है? घर का। कितना? 1080 मीटर स्क्वायर। और स्मॉल एरिया किसका है? टाइल्स का। टाइल का एरिया। बट टाइल का एरिया मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया मतलब बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, फॉर्मूला। और बेस इनटू ऑल्टीट्यूड मतलब बेस 24, ऑल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। हॉल का एरिया मीटर स्क्वायर में है, टाइल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। 1080 मीटर स्क्वायर के साथ 4 जीरो मल्टीप्लाई करो तो वो cm स्क्वायर बन जाता है। नाउ यू सी व्हाई आई टोल्ड यू टू राइट दैट डाउन एंड रिमेंबर फॉर एवर, बिकॉज वो कहीं पे भी काम आ सकता है। अपॉन 240 cm स्क्वायर। 0 0 12 2 जा 12 9 जा and 2 5000 9 5 जा 45,000 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो ये एक रियल लाइफ क्वेश्चन है। કડિયાને તમે બોલાવો टाइल्स નાખવાની છે તો કડિયો આવું કરવાનો છે कैलकुलेशन। तो ये एक सिंपल से मेसन या कारपेंटर को भी पता है, तो तुम्हें तो पता होना ही चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर हाईली एजुकेटेड और गोइंग टू बिकम हाईली एजुकेटेड। तुम्हें बनना है कारपेंटर, कड़िया, सुथार, मिस्त्री, धोबी नहीं, तो समझ लो कि उनको ये आता है तो तुम्हें तो आना ही चाहिए। So large area upon small area, area of room upon area of tile, tile का एरिया बेस इंटू ऑल्टीट्यूड और cm स्क्वायर सेम करके आंसर मिल जाएगा। Fifth question. Ant is moving around few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take longer round?
Remember, circumference of circle can be obtained by expression c is equal to 2 pi r where r is the radius. सब टाइम पास है. अलग अलग शेप दिए हैं, पेरीमीटर फाइंड करना है. चींटी चक्कर लगा रही है, तो चींटी जब चक्कर लगाएगी पूरा, तो कितना सेंटीमीटर चलेगी, मतलब पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r, बट 2r मतलब d पाई r प्लस d. अब d क्या है, दिस फुल इज डायमीटर 2.8, तो रेडियस उसका आधा 1.4, तो पाई r प्लस d. 1.4 मतलब 14/10, 7 2 44/10 मतलब 4.4, एंड 4.4 प्लस 2.8 7.2 सेंटीमीटर लंबा चक्कर लगेगा चींटी का around this piece of food. This is first. Second piece of food. Carefully see the figure. पहले चींटी सीधा ऊपर जाएगी, फिर राइट टर्न, फिर सीधा नीचे. और ये 3 ब्लू लाइंस का डायमेंशन कितना है, ऊपर जाने का 1.5. कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ है. और ये रूट 2.8, क्योंकि यहाँ पे 2.8 लिखा हुआ है. अब बचा ये आर्क, इसमें चींटी को कितना चलना पड़ेगा, पाई आर. कोई भी सेमी सर्कल का आर्क इज पाई आर. So how much will the ant have to walk around this food piece? Perimeter is equal to 1.5, ऊपर गई 2.8, राइट टर्न मारा 1.5, नीचे आई प्लस पाई आर कर्वेचर. 1.5 1.5 3 plus 2.8 5.8 पाई. बट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 2.8 का आधा 1.4 है. दैट्स ऑल. 7 2 44/10 4.4, 10.2 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा. Third shape. The ant moves around the piece of food. First it goes straight 2 centimeter. Then it travels in a curvature. It's not 2.8. 2.8 तो ये है, ये पाई आर है. And then it comes straight 2 centimeter. तो चींटी को कितना चलना पड़ा, पेरीमीटर is equal to 2 प्लस पाई आर प्लस 2. 2 plus 2 4 plus pi r. But what is the radius of the semicircle? तो ये 2.8 है, तो 1.4 1.4 हो गया ना, 2.8. दिस इज 2.8. 14/10. Plop 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 4.4. Cheetah will have to walk 8.4 centimeter around the piece of food. So main question क्या था, around which piece of food will the ant have to walk highest? For which food piece would the ant have to take longer round? तो longer round मतलब 7.2 10.2 8.4. तो
तो ये है longer round. This is where the ant will have to take a longer round. Area of trapezium. Look at how the formula has been written by them. H into a plus b by 2. बट मैंने क्या सिखाया है, एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड या हाइट. ऑल्टीट्यूड मतलब ये विच इज गिवन एज h. तो मेरा ऑल्टीट्यूड h बन गया. हाफ तो हाफ है, एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब दिस आई एम कन्वर्टिंग टू ब्लू wx प्लस zy. wx मतलब a और zy मतलब b. तो हो गया a प्लस बी. सो h a प्लस बी बाई 2. बट डोंट रिमेंबर दिस, क्योंकि हर सम में h और a प्लस बी नहीं दिखने वाले हैं. रिमेंबर इट कॉन्सेप्चुअली. कॉन्सेप्चुअली याद रखना, मतलब कैसा भी ट्रपीजियम हो तुमको पता चल जाना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन 1 और 2 का टोटल, आगे हाफ और पीछे मल्टीप्लाइड विद द हाइट और ऑल्टीट्यूड. फिर वो ए बी सी डी ई एफ जी या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो डोंट बाय हार्ट द फॉर्मूला एज एच ए प्लस बी बाई 2. बाय हार्ट इट एज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड. For example, very simple sum. Find the area of this trapezium. Area of trapezium is half sum of parallel sides 7 and 9 into height. Half 16 3 24 centimeter square is the area of the trapezium. अब ये स्टैंडिंग ट्रपीजियम है, तो इसमें पैरेलल साइड स्टैंडिंग हो गई है. 10 and 5 are parallel. So area of trapezium is half sum of parallel sides into height 6. Answer half 15 6 45 centimeter square. I think this is where we will stop and continue it next time.